So as you know that we got independence over after the 200 years rule by Britishers. So when they left, what was the condition of Indian economy? This chapter will going to tell us. So first of all, let's discuss why Britishers came to India or what was the real purpose of Britishers. So look the line I am underlining to you or highlighting. The sole purpose of British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier. It means they wanted India just as a raw material supplier. For what? For the growing industry in their country or in Britain. So they want to produce more and more goods. For that, they needed raw material, and raw material was easily supplied from India. So the sole purpose was to import raw material from India and to export finished goods to India. So what the social the main purpose or the sole purpose was importing raw material and exporting finished goods. This was their sole purpose. So I hope all of you understand. So what was the sole purpose of Britishers? To trade with India. So when this trade was going on, at that time India was good in the exporting of handicraft industries. We were good in cotton, silk textile, metal, and precious stone works like diamond works. So we were easily earning money with these sources before exporting the raw material. अब रॉ मटेरियल आप किसी को दोगे और बदले में आप उससे फिनिश गुड्स लोगे, तो नेचुरली आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और यू कैन से अनफेवरेबल होना शुरू हो जाएगा. So these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and high standard of craftsmanship seen in all imports from India. सो ऐसा नहीं है कि इंडिया हमारा आज ही इंपोर्ट कर रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहा है, उस समय भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और वो थे आपके पास हैंडीक्राफ्ट के बने कुछ ये मटेरियल्स. इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो राइज हो रहा था. अब जीडीपी राइज हो रही थी, बट साइड बाय साइड वी वर आल्सो इंपोर्टिंग व्हाट? फिनिश्ड गुड्स. हम बनी बनाई वस्तुएं बाहर से इंपोर्ट करने लगे थे. इसका नुकसान ये हुआ कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो पहले फेवरेबल हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे अनफेवरेबल होने लगा. अब उससे पहले इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट रहा, तो देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमारी नेशनल इनकम को मेजर किया. द फर्स्ट वन वाज दादा भाई नौरोजी. He was the first person who first estimated India's national income, दादा भाई नौरोजी. बट इन्होंने जब मेजर किया तो हमारी इकोनॉमी में जो मेजरमेंट के इनके वे थे वो कुछ फ्लॉ थे, इसमें कमियां थी जो लोगों को पसंद नहीं आई. उसके बाद विलियम डिग्बे ने ट्राई किया, फिनलिस राज ने भी ट्राई किया, डॉक्टर वी के आर वी राव और आरसी देसाई. तो सबसे बेस्ट जो मेजरमेंट माना गया दैट वाज फ्रॉम डॉक्टर वी के आर वी राव. इन्होंने जब मेजर किया तो पता किया कि हमारी जो इकोनॉमी का जो जीडीपी था दैट वाज लेस देन 2%. दैट वाज लेस देन 2% ऑफ जीडीपी. तो बेटा हमारी जो जीडीपी था उस समय वो लेस देन 2% था. इट वाज एस्टिमेटेड बाय डॉक्टर वी के आर वी राव.
इनका बेस्ट मेथड माना गया। अब कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ये वो सोच लेते हैं कि सबसे पहले इन्होंने मेजर किया। नहीं, सबसे पहले मेजर नहीं किया, सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी ने मेजर किया, उसके बाद इन लोगों ने उसमें रेक्टिफाई करते चले गए, मॉडिफाई किया, और फिर उन्होंने ये पता किया कि हमारा जो पर कैपिटा आउटपुट था दैट वाज ओनली 0.5% और 0.5%। So this was the finding done by Dr. V.K.R.B. Rao regarding the India's economic growth. So it was growth just less than 2% of GDP and per capita output was 0.5%. So this is the first phase for your GDP. Now, what was the condition of agriculture at that time? So we are studying the Indian economy on the eve of independence. So what was the condition? So first point you should know that about 85% people were engaged only and only agriculture activities. तो हमारे जितने भी मैक्सिमम 85% जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इतना प्रोडक्शन करेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी किस पे डिपेंड था? मेनली ऑन रेन और मॉनसून। तो जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्शन था वो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं हो पाता था ड्यू टू बैड मॉनसून। साथ ही हमारे को कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम आ गए। तो लो हमारा जो प्रोडक्शन था लो था। इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको सुनना ध्यान से, कि पहले ये होता था कि हम लोग सस्टेनेबल लाइफ को ही प्रोडक्शन करते थे, मींस जितना हमें चाहिए होता था हम उतना ही प्रोडक्शन करते थे। फिर हमको एरिया बड़े मिलते गए, हमको कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया, तो हमने लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया। बट हमारी जो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर की वो स्टैग्नेशन थी। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि उसमें ग्रोथ नहीं होना, एक स्टडी फॉर्म में उसको बनाए रखना। लैंड सेटलमेंट सिस्टम थे, इसका मीनिंग बहुत सारे उन्होंने हम पे तरह तरह के टैक्सेस लगाए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, जिसमें जमींदारी सिस्टम हमारा पास मेन था, जो जमींदार हैवी टैक्सेस लिया करते थे। प्लस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था दैट वाज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है बेटे कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आप प्रोडक्शन एक्सेस करते हो और फिर मार्केट में उसको सेल करते हो। इसका मीनिंग जो भी कैश क्रॉप थी उनका बिजनेस हमसे कराया गया बाय ब्रिटिशर्स, जिसमें आपने पढ़ा होगा इंडिगो। इंडिगो जिसे नील बोलते हैं, तो नील का प्रोडक्शन हम लोगों को किस रिक्वायरमेंट में था? हम तो यूज ही नहीं करते थे। ओपीएम का उन्होंने प्रोडक्शन करवाया, या अफीम का, तो वो भी हमारे यूज में नहीं था। बट वी वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस दीज एंड दे गेव अस मनी इन रिटर्न ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो एंड ओपीएम। प्लस कॉटन भी उन्होंने हमसे एक्सेस में प्रोडक्शन करवाया, जबकि हमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो इस वजह से उस समय एक प्रॉब्लम और भी आ गई थी कि हमको फूड तक अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ा था, यानी हमें वीट भी इंपोर्ट करना पड़ गया था अमेरिका से। क्यों? क्योंकि हमको कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में फोर्स किया गया और ऐसे प्रोडक्शन हमसे करवाए गए जो हमको उस समय बेसिक नीड में नहीं थे। तो एक प्रॉब्लम ये भी था। प्लस में आप सबको पता ही है इरिगेशन फैसिलिटीज तो शुरू से भी रही हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और फर्टिलाइजर्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी। ये सब थे लो प्रोडक्शन होने के कॉजेस, कि एग्रीकल्चर में किन कारणों से हमारा प्रोडक्शन लो रहा है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री हमारे पास अभी आई है, पहले नहीं थी। पहले भी हमारे पास कुछ इंडस्ट्रियां हुआ करती थी जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। सो लुक सम ऑफ द सेंटेंसेस आई एम रीडिंग फॉर यू। द प्राइमरी मोटिव of colonial government behind this policy of systematic deindustrialization India was twofold. उन्होंने क्या किया था? हमारी इंडस्ट्री को पीछे रखा। हम किस में एक्सपर्ट थे? हैंडीक्राफ्ट में।
तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे वो लोग पीछे करते चले गए और अपनी फिनिश्ड गुड्स हमको देते चले गए। इससे हमारे यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, हम इंडस्ट्री को डेवलप ही नहीं कर पाए। अब क्या रीजन था? फर्स्ट, टू रिड्यूस इंडिया टू स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर, यानी वो चाहते थे कि हम केवल एक्सपोर्ट ही करते रहें और रॉ मटेरियल के इंपोर्टर बने रहें। रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करते रहे हमसे, तो एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स हम उनसे बाय करेंगे। सेकंड है टू टर्न इंडिया इनटू ए स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो वही पॉइंट है। तो मेन कंसेप्ट यही है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे व्हाट? रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट करेंगे फिनिश्ड गुड्स का। इससे क्या होगा? जब हम रॉ मटेरियल उनको देते जाएंगे तो इंडस्ट्री हमारे यहां पर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती और उनकी इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो ये उनका टू फोल्ड मोटिव था बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं, तो उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियों को भी हमारे यहाँ पर हेल्प डेवलप करने में हेल्प किया, जिसमें देखिए second half of the 19th century modern industry began to take root in India, but the progress remained very slow. Initially this development was confined to the setting of the cotton and jute textile. तो हम लोग, क्योंकि उस समय बेसिकली बंगाल में अधिक प्रोडक्शन होता था, तो उस समय कॉटन और जूट के इंडस्ट्री हमारे यहाँ सेट हुए। The cotton textile mills, mainly dominated by the Indians, were located in the western parts of the country, namely Maharashtra, Gujarat. तो गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेट हुए थे। While jute mills were dominated by the foreigners, were mainly concentrated to Bengal. तो ये बात याद रखना, जो जूट मिल थे वो बंगाल में सेट हुए और जो टेक्सटाइल और कॉटन मिल थे वो महाराष्ट्र और गुजरात में। तो इसलिए आप देखते हैं कि काफी चीजें इनकी फेमस है महाराष्ट्र की और गुजरात की, वो टेक्सटाइल मिल्स में और कॉटन में है, और जूट हमारा बंगाल में है। इसी के साथ में हमारे पास एक था द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को के नाम से इसको जानते हैं, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। तो 1907 में टाटा ने अपनी आयरन स्टील कंपनी यहाँ पर सेट कर दी थी। इसको सेट करने में हेल्प की थी नेचुरली फॉरेनर्स ने हेल्प की थी, क्योंकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाने में उनको प्रॉब्लम थी, तो डायरेक्ट ही वो चाहते थे कि यहाँ से आयरन को ही बनाकर लेकर जाए। नाउ इसका बेनिफिट क्या हुआ? जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेट होने लगी और अब बंगाल में भी और महाराष्ट्र में गुजरात में अच्छा प्रोडक्शन हुआ, तो हम इन गुड्स के मेन और एक्सपोर्टर बन गए। सो हाउएवर दीज देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। अब हमने रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री तो बना ली, बट कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं बना पाए। To help promote further industrialization in the India, capital goods industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. तो हम ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बना पाए जो मशीनें बना पाती और जो हमारी इंडस्ट्री को, हमारे देश को हेल्प करती। तो हम केवल ये छोटे मोटे जूट, कॉटन, आयरन, इन चीजों का ही प्रोडक्शन कर पाए, किसी मशीनों का इस्तेमाल प्रोडक्शन नहीं कर पाए। इससे हुआ क्या? हमारा जो जीडीपी था नेचुरली राइज हुआ, बट मेनली वी वर मोर फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। सो अब ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो हमारा धीरे धीरे कम हो गया, और जो देश का जीडीपी था उसमें मेनली जो पोर्शन था वो एग्रीकल्चर का हाई रहा और सेक्टर का लो रहा है। सेक्टर रिमेन कन्फाइंड टू ओनली रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो ऐसा नहीं कि हमारी जो इंडस्ट्री थी, तो इंडस्ट्री क्या क्या थी आपको मैंने बताया। इंडस्ट्री के नाम पर रेलवे था, पावर जनरेशन था थोड़ा बहुत, कुछ कम्युनिकेशंस भी, पोर्ट बनाए गए थे, और जूट और टेक्सटाइल तो आपने सुन ही लिया। तो ये हमने अभी 3 पॉइंट बताए आपको। अभी आप देखिए, आपको जो मैंने, ये तो आपके एनसीईआरटी के 3 पॉइंट थे बेटे। अब मैं आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये हैं आपके नोट्स जो आपको आपकी नोटबुक में ये नोट करना है। तो नोटबुक में नोट करना है,
ये मैटर जो आपको बताया जा रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बताया गया कि व्हाट वाज द सोल पर्पस। तो सोल पर्पस मैंने कहा था, वो चाहते थे कि केवल वो इंडियन हमारी इकोनॉमी फीडर इकोनॉमी बनी रहे। किस चीज के लिए? ब्रिटेन के लिए। अब फीडर इकोनॉमी कैसे बनेगी? तो वो हमसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लेंगे और हमें फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये उनका मेन एम था। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय कैसा था। तो मैंने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ वाज ओनली अबाउट 2%, और जो हमारा पर कैपिटा आउटपुट था इट वाज जस्ट 0.5%। फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो मैंने बताया एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बेसिकली जमींदारी सिस्टम पे बेस करता था। कमर्शलाइजेशन के लिए हमको फोर्स किया गया था। पार्टीशन ऑफ द कंट्री भी एक प्रॉब्लम बनी उस समय, क्योंकि हमारे देश में डिवाइड एंड रूल का फैशन चल गया था, तो वो भी प्रॉब्लम बन गया। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड रहा ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इसके बाद मैंने बताया आपको इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर में उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में किया, जिसमें हमारी हैंडीक्राफ्ट को तो बैकवर्ड रखा गया और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरवर्ड रखा गया। कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे कोई बनने ही नहीं दी उन्होंने। सारा का सारा रॉ मटेरियल हमसे लेकर जाते थे और मशीनें हमारे यहाँ पर सेटअप नहीं होने दी। लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो नेचुरली गवर्नमेंट का इतना रोल होता ही नहीं था। और टैरिफ पॉलिसी भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी रखी हुई थी। टैरिफ बोलते हैं बेटे टैक्सेस को। तो उन्होंने क्या किया था, अगर कोई हम लोग अगर एक्सपोर्ट करेंगे अपनी गुड्स को, तो उसमें वो ज्यादा टैक्सेस लगाते थे, ताकि हमारी जो गुड्स है वो कॉस्टली हो जाए और हम ज्यादा एक्सपोर्ट बाहर ना कर पाए, ताकि हम जो सारा मटेरियल है वो केवल इंग्लैंड को ही दे पाए। तो ये उनका पॉइंट था। फिर आपके साथ है हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें बेटे सभी ध्यान सुनना, इसका मीनिंग क्या होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इकोनॉमिक्स में जब भी हम एक्स लिखते हैं इसका मीनिंग एक्सपोर्ट होता है और एम का मीनिंग इंपोर्ट होता है। तो अगर मान लीजिए हमने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया 80 का, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आया बेटे 20। अगर हम दूसरा काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं 100 का और इंपोर्ट करते हैं 120 का, तो ये आएगा -20। तो जब भी आंसर प्लस में आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज फेवरेबल, और जब आंसर माइनस में आएगा इट इज अनफेवरेबल। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। सो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था इनिशियली, अगर हम बात करें शुरू में जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर आए थे फॉर द बिजनेस पर्पस, तो उनका मेन एम था कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाना। और जब उन्होंने देखा कि इंडिया में तो बहुत से लोग हैं, यहाँ की पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो उन्होंने अपने फिनिश गुड्स इंडिया को बेचनी भी शुरू कर दी। वो बात का मैटर था। पहले उनका एम था कि सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए था उनको। तो जब वो हमसे लेकर गए, और हम लोग उनसे पहले भी हैंडीक्राफ्ट के एक्सपर्ट्स थे। मैंने बताया डायमंड्स हम लोग बना बना के बाहर जो निकलते थे हमारे माइंस में से, वो हम उसको अच्छे से हैंडीक्राफ्ट करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे। और जूट है, कॉटन है, ये हमने एक्सपोर्ट किया। तो इस वजह से हमारा इनिशियली तो ये फेवरेबल रहा, बट जैसे जैसे हम लोगों ने ज्यादा इंपोर्ट शुरू कर दिया फिनिश गुड्स का, तो फिर ये अनफेवरेबल बनता चला गया। तो अगर आप बात करें तो क्योंकि 200 ईयर्स उन्होंने राज किया था हम पर, तो आप कह सकते हो कि लगभग 1801 से लेकर और 1900 तक तो ये लगभग फेवरेबल रहा। और 1900 के बाद आप 1947 तक आप बात करें तो ये हो गया अनफेवरेबल। तो ये दोनों ही केसेस इसमें आए थे। ये आप इसको, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से जानना। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, तो ऐसा क्यों था अनफेवर होने का? तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब नेचुरली है, आप जिस चीज से गुड्स बन रही है
वो आप किसी को दे रहे हो और वो उससे गुड्स बना के आपको दे रहा है, तो कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? नेचुरली फिनिश गुड्स की ज्यादा होगी। तो फिनिश गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा और इसका मीनिंग हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड पे उनका मोनोपोली कंट्रोल भी था, और इन ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, इन वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो अनफेवरेबल हो गया था। तो इसी में एनसीईआरटी में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड के बारे में। मैं कुछ मेन सेंटेंसेस बेटे एनसीईआरटी मैंने आपको भेज दिया है, ये आप इसको अच्छे से देख लेना। तो एज यू नो दैट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज, हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, सुगर, इंडिगो, ज्यूट, वी वर द एक्सपोर्टर। और हम लोग इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क। अब देखो रॉ सिल्क हमने दिया और उसी से उन्होंने सिल्क बना के हमको वापस भेज दिया। फिर वुडन woolen cloths and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain, ये सब चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि इसका कॉस्ट क्या होगा और इसका कॉस्ट क्या होगा। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेचुरली वो अनफेवरेबल हो जाएगा। साइड इंडियाज फॉरेन ट्रेड was restricted to Britain, while rest allows a few other countries like China, Ceylon, and Persia. The opening of the Suez Canal further intensified British control over India foreign trade. अभी आपने इसके बारे में बहुत टीवी में सुना होगा कि सुएज कैनाल जो है वो अभी ब्लॉक हो गया था। अब वो उस सुएज कैनाल की हिस्ट्री क्या है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूं, देखिएगा। ये आपके पास एक मैप है। पहले क्या होता था कि यहां यूनाइटेड किंगडम से शिप आता था तो इधर पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इधर जाके वापस इंडियन ओशन में आके और यहां हमसे सामान वो लेता था। यानी अगर हमको एक्सपोर्ट करना है या हमें इंपोर्ट करना होता था तो ब्रिटेन से यहां आने में ये करीबन तो 28,000 किलोमीटर का रूट पड़ता है। इसको पूरा करने में उनको 5 से 6 महीने का समय लगता था। इन बिटवीन आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता था क्योंकि रॉ मटेरियल था। अगर आप यहां से शुगर केन ले गए तो वो सूख जाएगा, आप कोई और चीज लगे हो गए तो उसमें कीड़े पड़ सकते थे, मतलब बहुत सारी बातें हो सकती थी, समय इतना लगता था। तो उन्होंने एक नया सुएज कैनाल बनाया। इसमें क्या था, इन कंट्रियों से बात करके ये यहां से एक जाके इधर समुद्र का कुछ एरिया था, फिर कुछ ये आपके पास कैनल में, और यहां से ये जो एरिया देख रहे हैं ये वाला एरिया, इस एरिया को आर्टिफिशियली बनाया गया। बीच में कुछ ये छोटा मोटा एरिया था, कुछ को काटा गया, ये अभी भी काटने का एरिया काम चल रहा है और इसको बड़ा किया जा रहा है। ये एक ज्यादा बहुत बड़ा भी नहीं है, इतना ही है कि इसमें शिप आराम से निकल सके। अब हुआ क्या, एक शिप अभी हाल ही में जिसमें पूरे इंडियन क्रू मेंबर्स उसको ऑपरेट कर रहे थे, तो वो शिप यहां पर किसी कारणवश, अब ये कह रहे हैं कि विंड बहुत तेज थी या जो भी रीजन था, वो इसमें आपका टेढ़ा इस तरह से हो गया था, ब्लॉक हो गया। अब उसको सीधा कर किया नहीं जा पा रहा था मशीनों के थ्रू, तो वो उसमें करने में करीबन 8 से 10 दिन का समय लग गया इनको। इन बिटवीन पूरे रूट पर काफी जाम लग गया क्योंकि बहुत सारे शिप आना जाना होता है। तो यहां से यहां तक आने में जो कि 28,000 किलोमीटर का एरिया था वो मात्र 800 किलोमीटर का एरिया रह गया। इसका मतलब यहां से यहां आने में शिप को केवल 1 वीक का समय लगा, जो कि पहले 6 महीने में लगता था वो 1 वीक में। इस रूट के ओपन होने से इंडिया का जो ट्रेड था वो स्पीड से राइज हो गया। तो इससे अब नुकसान क्या हुआ हमें? नुकसान ये हुआ कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव होने लगा क्योंकि हम लोग फिनिश गुड्स मांग रहे थे और रॉ मटेरियल दे रहे थे, तो रॉ मटेरियल स्पीड से जाने लगा और फिनिश गुड्स भी हमारे कंट्री में स्पीड से आने लगे, तो नेचुरली हमारा जो वैल्यू था वो कम हो गया। अब सुएज कैनाल के बारे में देखिए आपके एनसीईआरटी में और क्या क्या लिखा है। तो ये था, सुएज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ
तो पहली बात तो आर्टिफिशियल वाटरवे है, ये कोई ओरिजिनल नहीं था, इसको बाद में बनाया गया था, रास्ता पानी में होकर रास्ता बनाया गया। तो ये है, और अभी इससे नेचुरली कब ओपन हुआ? 1869 में इसको ओपन किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, 1869 में। और इससे क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो था वो इंडिया के लिए कम हो गया था। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द सुएज कैनाल, जिसके बारे में अभी आपने हाल ही में न्यूज में बहुत देखा होगा। नाउ आफ्टर दिस, अब हम बता रहे हैं कुछ हमारे इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज डन इन 1881, यानी भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज डन इन 1881। उसके बाद से हम लोग इसको ईच एंड एवरी 10 ईयर्स के बाद इसको हम काउंट करते हैं। तो फर्स्ट उस समय हुआ था। अब उस समय जब काउंट किया गया पॉपुलेशन को, तो हमें क्या क्या हमारी फाइंडिंग हुई थी, तो वो आप देखिए। बिफोर 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 फेसेस होते हैं। अब आप इसको देखिएगा, इफ बर्थ रेट हाई, डेथ रेट also high, it was the first phase of demographic transition, जिसमें हमारा बर्थ रेट भी हाई होगा और डेथ रेट भी हाई होगा। तो ऐसा था बिफोर 1921। उसके बाद बर्थ रेट तो हाई रहे बट डेथ रेट लो हो जाए, ऐसा हुआ था आफ्टर 1921। आफ्टर 1921, तो इट वाज द सेकंड फेज। दिस वाज द सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और थर्ड फेज में क्या होता है बेटे, कि बर्थ रेट भी लो हो जाती है और डेथ रेट भी लो हो जाती है। ऐसा अभी येट टू कम, ऐसा हमारी कंट्री में अभी नहीं हो पाया है। तो अभी भी हम सेकंड फेज में ही जी रहे हैं, जिसमें हमारी बर्थ रेट तो हाई है और जो डेथ रेट है वो लो हो है। तो ये हमारी कुछ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी कहलाती है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फेज और सेकंड फेज और थर्ड फेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1921 से पहले हमारे पास जो बर्थ रेट था वो भी हाई होता था और डेथ रेट था वो भी हाई होता था। तो पॉपुलेशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही थी। उसके बाद से हमने, क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमारे लिए एक मेडिसिन बनाई और कुछ हम लोग भी इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, और उनके कुछ स्पेशल जो मेजरमेंट थे वो भी उन्होंने सफाई पे ध्यान दिया, तो जो डेथ रेट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन बर्थ रेट नेचुरली वो उस पर इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसमें क्या फाइंडिंग निकाले, तो जब पॉपुलेशन काउंट की गई थी तो देखिएगा, मोर्टेलिटी रेट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, और ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%। इसका मीनिंग जो पढ़े लिखे लोग थे वो केवल 16% होते थे, वो भी उससे भी कम। और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज तो नेचुरली ना के बराबर होती थी, कोई पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। जिसमें फीमेल लिटरेसी लेवल तो और भी लो था, यानी पढ़े लिखे लोगों में फीमेल और भी कम पढ़ी होती थी, केवल मेल ही ज्यादा इसमें डोमिनेंस रखते थे। और infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand in contrast to the present infant mortality rate of 40 per thousand। अभी यहां से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मीनिंग 0 से 1 साल की एज में आते आते कितने 1000 बच्चों में डेथ होती थी, तो 1000 में 218 बच्चे उस समय उनकी डेथ हो जाती थी 1 साल तक होने में, जो कि अब केवल 40 है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रेशो पहले कंपेयर में हो गया है।
जो अभी भी अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी पहले के कंपेयर में अच्छा है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी व्यक्ति कितने साल एज एन एवरेज जिंदा रहेगा, तो उस समय 44 ईयर्स था, जो कि आज 68 ईयर्स है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी जो कि हमारी पॉपुलेशन को काउंट की गई थी 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल में काउंट किया गया था। तो 1921 के बाद में ऐसी फाउंडिंग हमें मिली थी। ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अब देखिए इसके बारे में मैंने आपके नोट्स में क्या लिखा है बेटे। तो ये था हमारे पास डेमोग्राफी अनफेवरेबल। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है हाई बर्थ रेट बहुत हाई था, डेथ रेट सॉरी, जो कि 40/1000 अब है हमारे पास में। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 218/1000 का है। मास लिटरेसी 83% लोग उस समय यानी अनपढ़ होते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स था उस समय, जो कि अब इस समय मैंने बताया कि 68 ईयर है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो स्टैंडर्ड लिविंग था, 80 to 90% लोगों के पास में तो कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती थी, सच एज टॉयलेट वगैरह। एंड अंडर डेवलप्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मोर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो ये हमारे पास कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल था उस समय का। तो दिस इज द समरी ऑफ योर चैप्टर। अब हम इनके एक एक कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और है, वो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। तो मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी 85% पॉपुलेशन किस सेक्टर में काम करती थी, वो करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अच्छा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि किस सेक्टर में कितने परसेंट लोग एंगेज्ड है, उनका व्यवसाय क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे लोग थे वो देखिए आपके इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है ये कि 70 to 75% एग्रीकल्चर में था, मैन्युफैक्चरिंग में 10% था, और सर्विस सेक्टर में 10 to 20% था। ये है हमारा उस समय का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हो प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर में 70 to 75% people were engaged. Secondary sector 10% people were engaged, and service sector और tertiary sector you can say, इसमें हमारे पास 15 to 20% people were engaged। तो ये तीन हमारे पास मेन सेक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में आते हैं। जिसमें भी आप कुछ ये पॉइंट्स हैं ये, और आप एक एनसीईआरटी मैंने आपको सेंड की है, आपको डिटेल में एक एक चैप्टर लाइन अच्छे से पढ़कर देखना। मैं तो आपको मेन मेन सेंटेंसेस ही पढ़ा रहा हूँ, और आप घर पे इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। आप देखिए कुछ इसमें पार्ट्स के जगह के नाम है। पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी, स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल विटनेस डिक्लाइन in the dependence of the workforce on the agriculture sector। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन स्टेट्स में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि 85% लोग एग्रीकल्चर में थे, अब 85 से क्यों 70 पे आ गए? अब 85 से 70 से 75% पे क्यों आ गए? क्योंकि आपने देखा कि इन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप होने लगा था। जैसे मैंने कहा था जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और आपके पास में कुछ और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी सेटअप हुए। तो उस इंडस्ट्री में आने से नेचुरली अगर इंडस्ट्री आपकी राइज होगी तो फिर प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन होगा। तो ये प्राइमरी सेक्टर हमारा डिक्लाइन होने लगा। साथ ही शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन स्टेट सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, इसमें इंक्रीज हो गया। अब इन स्टेटों में तो कम हो गया, लेकिन इन स्टेट में बढ़ा। क्यों बढ़ गया इनमें? क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर के अलावा कोई और इंडस्ट्री सेट नहीं हो पाई। अब पंजाब में तो कोई इंडस्ट्री सेट हुई नहीं, राजस्थान में भी नहीं, क्योंकि अब नेचुरली वहां पर कोई इंडस्ट्री का बेस नहीं बना, उड़ीसा में भी नहीं बन पाया। तो यहां पर एग्रीकल्चर और यू कैन से प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ और आपका सेकेंडरी सेक्टर डिक्लाइन हो गया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ बेकार ही किया।
तो कुछ चीजें उन्होंने हमारे लिए बनाई भी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने हमको रेलवे दिया, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, ये उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। अब वो बात दूसरी है कि इनको डेवलप करने में उनका खुद का अपना मोटिव था, लेकिन फिर भी वो हमको देकर गए। साथ ही रोड्स उन्होंने भी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्ट किए। रोड कंस्ट्रक्ट को करने से उनका मेन पर्पस, तो देखो रोड बनाया क्यों बनाया था, उनका मेन पर्पस ये था कि प्राइमरी सर्व द पर्पस ऑफ द मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन इंडिया। यानी जब भी इंडिया में, क्योंकि उस समय नेचुरली विरोध वगैरह हो रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन चल चुका था, तो वो चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी सेना इंडिया के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने रोड डेवलप किए एंड वो ये भी चाहते थे कि रॉ मटेरियल आसानी से कंट्री साइड से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाए या पोर्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा। अब मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश में या किसी और स्टेट में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनको पोर्ट तक आने, क्योंकि उनको शिप के थ्रू जाना है, पोर्ट तक आने में उन्होंने रोड्स बनाए। ये उनका मेन मोटिव था। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी ध्यान से सुनना कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इंडिया इन 1850। अब यहां बहुत बच्चे गलत आंसर लिख देते हैं। एक बात है इंट्रोड्यूस्ड, यानी पहली बार रेलवे कब इंट्रोड्यूस किया गया, और यह पहली बार रेलवे कब ऑपरेशन में आया, कब चला था, यानी पहली रेल कब चली। देखो 1850 में तो उन्होंने स्टार्ट किया काम, लेकिन जो 1853 था, 54 में, उसमें उन्होंने पहली रेल चलाई थी मुंबई टू थाने, और यू कैसे बॉम्बे टू थाने के बीच में। तो ऑपरेशन 1854 में था और पहली रेल जो इंट्रोड्यूस किया था वो 1850 में था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप किया जिसका बेनिफिट हम आज भी उठाते हैं। देखिएगा, ये है वो पहली बार जब ऑपरेशन किया गया था। तो एक आप इमेज दे रखिए, फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने 1854। तो 1854 में ये ब्रिज वगैरह बना के उन्होंने और रेलवे चलाई थी बॉम्बे टू थाने के बीच में। सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट चैप्टर। नाउ अब आपको इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि ये भी नहीं था, हमारे पास उस समय देखिएगा टाटा एयरलाइंस भी बन चुकी थी। अब जो टाटा एयरलाइंस इस समय बंद है, अ डिवीजन ऑफ टाटा सन्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932। तो 1932 में पहला हमारे यहाँ पर एरोप्लेन बन गया था, टाटा ने बना दिया था 1932 में, आजादी से पहले ही। तो ये कुछ समरी है फाइंडिंग्स जो मैं आपको असाइनमेंट में मैंने लिखी हुई है। तो जो आपको डेट्स याद करनी है, तो देखिए वो क्या क्या डेट्स हैं। अब आपको करना क्या है, ये हमने जो असाइनमेंट भेजा है इसकी समरी आप लिखेंगे। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब ये देखिएगा आपकी समरी है, लास्ट में मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस नोट करेंगे सभी रजिस्टर में अपने। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सभी के आंसर्स नोटबुक में लिखेंगे रजिस्टर में अपने, फर्स्ट चैप्टर के में। कहाँ गया, हाँ नहीं ये भी नहीं है, मैंने कुछ समरी बनाई थी इसमें। हाँ ये लिखिए बेटे, देखो की पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आपके एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में आपको हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट है, आप सबको पता है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी कब आई, 1907 में। शुगर, सीमेंट और पेपर मिल कब आए थे, आफ्टर 1947 45 में, ये इनका डेवलप अच्छे से हो गया था। सुएज कैनाल 1869 में ऑपरेट हुआ था। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन बिफोर 1921 था, सेकंड स्टेज आफ्टर 1921 है, और थर्ड स्टेज येट टू कम, अभी आई नहीं है। टाटा एयरलाइंस कब आया था, 1932 में। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे कब इंट्रोड्यूस किया था, 1850 में। और फर्स्ट रेलवे उन्होंने ऑपरेट कब की थी, वो देखिए 16 अप्रैल 1853 में। 1853 में उन्होंने पहली रेलवे चलाई थी एट 3:35 PM पर, पहली पैसेंजर ट्रेन उन्होंने चलाई थी,
और जो लिंकिंग ब्रिज था वो 1854 में ऑपरेट किया गया था। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो आपको इसकी याद रखनी होंगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपसे इसके बारे में पूछेंगे। तो जो मैंने बताया था वो बॉम्बे विद ठाणे, वो था आपका लिंकिंग ब्रिज। पहली रेल उन्होंने कब चलाई थी? 1853 में। और काम कब स्टार्ट किया था? 1850 में। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट चैप्टर की जो समरी है, क्वेश्चंस हैं, स्पेशली एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये रजिस्टर में लिखने हैं। इनको मैं कुछ नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं, जो आपको एक बार फिर से घर पे पढ़कर देखनी है, और एनसीईआरटी की बुक बाय कर लोगे तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब आप जस्ट अ मिनट,